Hello, Assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports 10 Sports and the Airwise app. Our continued coverage of the ICC World Cup 2023 coming to you from India. With me, I have four outstanding cricketing minds in the Pavilion, and let me bring them into the panel. Start with the young, dynamic, always dropping pearls of wisdom, Mr. Shoaib Malik. Shoaib, good morning. Good afternoon. Assalamu alaikum everyone. अभी तक दोपहर के 12 बजे, right? नहीं वो नाश्ता नहीं करते ना क्योंकि नाश्ते के बाद आफ्टरनून होता है. अच्छा चले ठीक है. If you insist. मिसबा भाई कह रहे हैं. So here's the thing, let me tell you that when I'm introducing people, don't talk to the other person because then you basically destroy their introduction. It's a protocol in television. Let me educate you on live television. Really? Right, but now that you've already introduced, yes, of course, I've got Mr. Dependable, the most successful Test captain in Test cricket of Pakistan's Pakistan cricket history, Mr. Misbah. Good morning, Misbah. Or rather, afternoon. I love your punctuality. You've been very, very punctual lately. I like it. Appreciate it. कल का बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई जरूरत मुझे बदला लेने यार इसमें बदले की कौन सी बात है इसमें बदले की तो कोई बात नहीं है इसमें मोहब्बत की बात है आप सारे यही कहते हैं सारे यही कहते हैं एक जख्मी दिल बोला है सारे यही कहते हैं जेड़े बदला ले रहे हैं सारे यही कहते हैं well done and with that I've got the man of crisis one of the finest wicket keepers in the game of cricket and great running between the wickets the silver fox of the Pavilion Moin Khan assalamu alaikum wa alaikum assalam Assalamu alaikum to everyone. Thank you very much. Always. And finally, cricket royalty, the undisputed Sultan of Swing, the king of all all-rounders, Mr. Wasim Akram. Assalamu alaikum, Wasim. Good afternoon. Assalamu alaikum, everyone. And with that, let's take a look at the points table to start off today's proceedings. This is how the points table is. Now, you can see South Africa right on top there with that massive victory against Australia yesterday. New Zealand दूसरे नंबर पे है, इंडिया तीसरे नंबर पे है, पाकिस्तान चौथे नंबर पे है, इंग्लैंड पांचवें, बांग्लादेश छठे नंबर पे, श्रीलंका सातवें, नेदरलैंड्स आठवें, ऑस्ट्रेलिया 90 नंबर पे है, अफगानिस्तान 10वें नंबर पे है. नाउ रिमेंबर कि जो टॉप की चार टीमें होंगी वो सेमीफाइनल खेलेंगी, मगर इस वक्त सूरत हाल जो है कि आज का जो मुकाबला है वो बड़ा ज़रूरी है. ये है आपका पॉइंट्स टेबल. Now let's talk about the game that we have today. आज आपकी खिदमत में हम लेकर आ रहे हैं एक और मुकाबला. आज दो टीमें जो कि दोनों की दोनों they want a victory under their belt. Now this is how the game is going to be. It is going to be from Chennai. It is Bangladesh versus New Zealand. Now New Zealand of course with a great start and they'd like to keep that momentum going. Bangladesh seeking their first victory. 1:30 बजे ये मैच आपके लिए बाकायदगी से शुरू होगा. Let's talk about New Zealand, Wasim. They look like a fine team this World Cup. Yeah, the way they played their game, especially against England, convincing win, convincing chase. And Bangladesh really have to fight really hard to even put pressure on the New Zealand side. Although, we all know the match is in Chennai. Apparently, the myth is, और जो कहते हैं लोग ये stats को इतना ख़ास नहीं बताते कि ये स्पिन को मदद करती है. पिछले मैच में हमने देखा ऑस्ट्रेलिया और जो मैच था इंडिया का वो विकेट जैसे मैंने कहा खाड़े की तरह लगी, बट शाम को जब थोड़ी ओस पड़ी, ऑल्दो इंडिया की 3 विकेटें गिर गई थी बड़ी जल्दी 2-4 रन्स पे, कोहली और फिर राहुल ने आके उनको संभाला बिकॉज ऑस्ट्रेलिया स्कोर नहीं कर पाया, तो वो लगी थी कि स्पिनर्स को हेल्प करेगी. बट जनरली अगर कंपैरिजन किया जाए पिछले 5 में ओडीआईज का चेन्नई में, तो फास्ट बॉलर्स की जो एवरेज है दैट्स 32 एंड स्पिनर्स की 36. तो खास इट्स द ऑपोजिट, फास्ट बॉलर्स की एवरेज बेटर देन द स्पिनर्स. सो लेट्स सी व्हाट सॉर्ट ऑफ पिच इज इट टुडे बिकॉज इंडिया के खिलाफ तो बड़ी ऑड लगी थी. जी हाँ. मोइन, न्यूजीलैंड टीम एवरीथिंग ऑल कॉर्नर्स कवर्ड, कोई उसमें नहीं है, बट उनके लिए खबर ये है कि केन विलियमसन जो है वो नाउ अवेलेबल 6 महीने के वक्फे के बाद इज अवेलेबल टू प्ले. So who did they leave and bring Kane Williamson? मुश्किल डिसीजन होगा यकीनन क्योंकि यंग ने भी स्कोर किया है और मे बी मिडिल ऑर्डर से मुझे लगता है कि शायद किसी को चैपमैन को या फिलिप्स को किसी एक को ड्रॉप करेंगे. फिलिप्स को मे बी इसलिए ड्रॉप शायद ना करें क्योंकि एक एज एक्स्ट्रा उनके पास, ऑफ स्पिन बॉल कर लेते हैं. तो मुझे ऐसी लगता है कि केन विलियमसन के आने से ऊपर से ही इनको ड्रॉप करना पड़ेगा. या तो चैपमैन की जो मैं बात कर रहा हूँ उसको ड्रॉप करेंगे मिडिल ऑर्डर से, या फिर यंग को ड्रॉप करना पड़ेगा. बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा. मैन इन फॉर्म 70 रन भी किए मैं पिछले मैच में. डिसीजन मुश्किल है, बट केन विलियमसन जिस तरह के बैट्समैन है, जिस तरह वो रिस्पॉन्सिबल, ऑफ कोर्स कैप्टन तो है ही, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं, जिस तरह इनिंग बिल्ड करते हैं, वो एक्सपीरियंस
और किसी बैट्समैन के अंदर नहीं है इस पूरे स्क्वाड के अंदर. सो he has to play and मुझे लगता है कि यहाँ पे यंग को ही ड्रॉप करना पड़ेगा अगर टॉप ऑर्डर में. We'll find out as we go along through the day. मिसबा, हम बात कर रहे थे केन विलियमसन की 6 महीने आईपीएल में इंजर हो गए थे, नी इंजरी हुई थी, उसके बाद आउट. एक वक्त ये भी था कि कह रहे थे कि शायद वो वर्ल्ड कप के लिए नहीं तैयार होंगे. एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम लोग यहाँ पर करते हैं कि जी न्यूजीलैंड का पूल ऑफ प्लेयर्स जो है वो बड़ा छोटा है, मगर वो उसी फिर पूल में से जो है ना सारों करते रहते हैं, और उसी पूल में से उन्होंने केन विलियमसन के को रिप्लेस करने के लिए, यानी कि अगर उनके बगैर भी उनको खेलना पड़े वर्ल्ड कप, उन्होंने एक पूरी की पूरी टीम तैयार कर ली. दैट्स आउटस्टैंडिंग फॉर देम टू एक्चुअली लूज समबडी लाइक केन विलियमसन. इट्स लाइक बाबर आजम, गॉड फॉरबिड, हैज टू बी लेफ्ट आउट ऑफ द टीम. हू डू यू ब्रिंग इन, सो गुड फॉर न्यूजीलैंड. बिल्कुल, प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त है और उनको पता है कि हमें लाइक फॉर लाइक जो रिप्लेसमेंट्स है हमारी तैयार होनी चाहिए. इवन पाकिस्तान का जब टूर किया उन्होंने तो ये सारे जो बैकअप था वो लड़के उस टाइम पे खेले हैं, तो उनको अब कोई फ़िक्र नहीं है कि उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है और पिछले मैचेस में परफॉर्म करते हुए. और इवन विलियमसन ने भी प्रैक्टिस मैच खेला हुआ है, ये नहीं कि उसकी मैच प्रैक्टिस नहीं हो, 50 किया उसके बाद रेस्ट किया उसने. तो आई थिंक कि बेसिस सारी उनकी कवर है और उनको पता है इट डजेंट मैटर विल यंग ने स्कोर कर दिया, उसने स्कोर कर दिया, बट दे नो कि बेस्ट 11 उनकी कौन सी है. और न्यूजीलैंड वाहिद वो टीम है जिसको हम कहते हैं ना कि कंडीशंस, सारी कंडीशंस की टीम है वो. जहाँ मर्जी मैच हो जाए, वो वर्ल्ड कप्स में जहाँ मर्जी टूर्नामेंट हो, वो एंड पे पहुँचते ही पहुँचते हैं टॉप 4 में. T20 की मिसाल आपके सामने है, तो उनके पास स्पिनर्स भी हैं, स्पिनर्स को खेलने वाले, स्लो पिचेस पे खेलने वाले भी बैट्समैन हैं. तभी बांग्लादेश को उन्होंने बांग्लादेश में अभी रिसेंटली 2-0 वहाँ उनके होम पे हराया है कि बांग्लादेश बड़ी मुश्किल टीम है. सो और 5 के 5 मैच वो वर्ल्ड कप में भी इसीलिए जीते हुए, क्योंकि वो होमवर्क करते हैं, प्रॉपर बड़ी क्लिनिकल किस्म की परफॉर्मेंस होती है उनकी. दैट्स व्हाई न्यूजीलैंड टीम इज़ टफ टू बीट इन वर्ल्ड कप्स. शोएब, पिछले मैच में चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया के स्पिनर्स ने 6 विकेट्स हासिल की थी. आज स्पिन कितना ज़्यादा रेलेवेंट होगा इस मैच के अंदर, स्पिन बॉलिंग? मुझे ये लगता है कि पिच देखेंगे, पिच रिपोर्ट आएगी तो फिर उसके बाद इस पे ज़्यादा जिसका कोई अभी तक जिसका कोई हमें कोई ज़्यादा कोई खास पता नहीं चलता. लेकिन वसीम का फेवरेट सब्जेक्ट है पिच रिपोर्ट जो है. एक चीज़ ज़रूर है, जैसे इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ खेला और अश्विन जो है वो पावर प्ले में भी आ गए थे बॉलिंग करने के लिए, तो वो सूट कर रही थी. और 3 स्पिनर से कोई भी खेले तो वो कोशिश करता है कि एक स्पिनर जो है वो पावर प्ले में बॉलिंग करे. राइट. तो आज भी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है चेन्नई में, क्योंकि श्रीलंका के साथ है, तो इस वजह से स्पिनर्स को हेल्प ज़रूर मिलता है. हम लोगों ने आईपीएल के मैचेस में भी देखा, लेकिन जब हम लोग 2012 में खेले थे लास्ट मैच वहाँ पे, तो कोई इतना स्पिन नहीं था. राइट. उस वक्त बहुत हार्ड पिच होती थी, बॉल जाता था, लेकिन बाद में मेरे ख्याल में कंडीशंस चेंज हो गई हैं. 11 साल हो गए इस बात को, तो ये ज़रूर एज जाएगा. अगर तो ड्राई पिच हुआ तो वो एज जाएगा स्पिनर्स को, लेकिन दूसरी दफ़ा वो इसलिए बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि ड्यू आती है, ड्यू पिच को जो है वो जोड़ देती है और ना इस तरह स्पिन होता है जो कि हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के उसमें देखा. लेकिन समझ नहीं आई कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बैटिंग क्यों की थी उस पर. उस पर तो बहुत सारे सवालिया निशान है. With that, we're going to take a break right here on the Pavilion. When we come back, there's more on the other side. Don't go away. Welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and Sports and the Airwise app. Our continuing coverage of the ICC Men's World Cup 2023. And today we're taking you to Chennai, where New Zealand are clashing with Bangladesh. और इससे पहले कि हम मजीद बात करें बांग्लादेश की बॉलिंग की और न्यूजीलैंड की बॉलिंग की, why don't we go take a look at the pitch report brought to you by Onic. Let me bring that straight to you, Wasim. What do you think about that? I think it was a good pitch report, the best so far in this World Cup. Because explain किया है, decisive थी pitch report. It wasn't generic. They said much better pitch than the Australia-India game. Less turn, slightly bit more grass rolled in, ताकि cracks ना खुलें. So yeah, that's a good sign, I suppose, for both sides. Not maybe for Bangladesh as much, because they would have loved to play on Turner in general against the Kiwi side. Let's talk about Bangladesh spin attack now. ये एक stat आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आ रहे हैं, उसके ऊपर जरा नजर डालिए. This is the best average by spinners since the last World Cup, the 2019 World Cup. And look at that, Bangladesh right on top there with 28.2, Sri Lanka at 20.2, Australia number 3 at 30.9, Australia at 3 here, South Africa at 4, West Indies at 5. Pakistan is not in that list, neither is India. Bangladesh play a lot of cricket, I suppose, in Bangladesh. And obviously over there, they make turners, big turners, dry turners,
और अब उनके पास 3-4 स्पिनर ऐसे हैं, इंक्लूडिंग द कैप्टन हु इज द नंबर 1 ऑलराउंडर, नॉट जस्ट फॉर नाउ, आई डोंट नो फॉर हाउ मेनी, बोथ आई थिंक शाकिब एंड मेहदी हसन मिराज, Yeah. जो कि मेन इस टाइम पे उनके परफॉर्मर हैं विद द बॉल एंड विद द बैट, सो दैट्स व्हाई एंड दे प्ले एन एक्स्ट्रा ऑफ स्पिनर आल्सो, वो भी आके रोल प्ले करते हैं। बट सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा उनका कि सामने जिस टीम से आज उनका मैच है, उनके जितने बैट्समैन हैं उनकी एवरेज स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिन बहुत अच्छे हैं, एंड दैट्स व्हाई न्यूजीलैंड वन द सीरीज अगेंस्ट देम इन बांग्लादेश। इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड कॉन्टेस्ट, दोनों में बड़ा ज़बरदस्त एक मैच होगा। और जैसे कंडीशंस की बात हुई, आई थिंक टॉस विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑल्सो, क्योंकि पिच अगर इक्वेशन से निकल जाती है, अच्छी बैटिंग पिच है, तो फिर मुझे लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो चाहेगी कि वो बैटिंग सेकंड करे, ताकि वो ग्रिप ना हो बॉल और अच्छा उस पर खेले। if you remember last time when India played Australia, they showed about after second bowling 20 overs, उन्होंने दिखाया कि कितना ड्यू पड़ा हुआ था। रिमेंबर क्लोज अप ग्रास का दिखाया था, ड्रॉप रेट्स वर देयर, सो दैट डेफिनेटली विल अफेक्ट द डिसीजन के पहले बॉलिंग करनी। जो रिपोर्ट आई है पिच की, सो अब बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग नहीं है, बैटिंग वर्सेस बैटिंग है, क्योंकि अच्छी पिच है जो रिपोर्ट आई है। तो इसमें यह है कि जिसकी बैटिंग अच्छा खेलेगी आज के मैच में, वो ज़्यादा चांसेस होंगे उसके जीतने के। इस तरह नहीं देख सकते कि अब चूंकि पिच इज आउट ऑफ द इक्वेशन, सो इट्स बैटिंग वर्सेस बैटिंग, सो जिसको भी बॉलिंग की एज होगी, दूसरी की बैटिंग को कंटेन कर सकेगा, वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे होगा। आई मीन यू कैन लुक एट इट दैट साइड एज वेल, यू कांट जस्ट से इट्स बैटिंग वर्सेस बैटिंग। लेट्स टेक अ लुक एट उसमें मैं डिफाइन कर सकता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि उसमें जैसे कोई भी बैटर सेट होगा, राइट, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो अपने रन्स कितने बनाता है, 40-50 बनाता है या 100 बनाता है। उस पर्सपेक्टिव से आप बात तो वो इसीलिए जो है जो भी सेट होगा, तो वो आप डिपेंड करता है कि बांग्लादेश वाले बैटर कोई सेट होता है या बैटर सेट होते हैं, तो वो कितने रन्स बनाते हैं। सेम गोज फॉर न्यूजीलैंड, तो जो लंबे रन्स बनाएगा सेट होने के बाद, वो टीम जीतेगी यार। इनका ओपनर जो है तंजीद, वो भी स्ट्रगल कर रहा है थोड़ा। आई थिंक पिछली 40 रन है उसकी पिछले 6 इनिंग में, बिल्कुल, तो उसकी एवरेज हुआ है अंडर 7। मैं एक दफ़ा कॉन्वर्सेशन वापस लेकर आता हूँ मोइन आपके पास। हमने स्पिन का तो देख लिया कि बांग्लादेश राइट ऑन टॉप, बट जिस तरह वसीम ने पॉइंट आउट किया राइटली सो कि वो अपने होम ट्रैक्स पे, ड्राई ट्रैक्स के ऊपर खेलते हैं। बट लेट्स नॉट ऑल्सो डिस्काउंट द बांग्लादेश फास्ट बॉलर्स। ये एक और स्टैट है हमारे पास फास्ट बॉलर्स का, बॉलिंग अटैक का। ये जरा देखें, बेस्ट फास्ट बॉलिंग एवरेज इन ओडीआई इस स्टैट्स में सेकंड नंबर पे, पिछले प्रीवियस 2023 के ये स्टैट्स हैं। हाँ, इस साल के जब से एलन डोनाल्ड आए, टीम के साथ फास्ट बॉलिंग इंप्रूव हुई है, पेस भी जनरेट की है इनके फास्ट बॉलर ने, विकेट्स भी लिए। ऑल्दो तस्किन इतने फॉर्म में नहीं है इस वर्ल्ड कप में नजर आ रहे, बट प्रीवियस रिकॉर्ड इनका देखा जाए तो तस्किन भी बहुत फॉर्म में थे, मुस्तफीज़ भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, एंड देन शरीफुल जो एक अच्छा बॉलर नजर आता है विद द स्टंप्स, एंड एक्यूरेट काफ़ी है, इस वजह से ये स्टैट्स हमें नजर आ रहे हैं कि बांग्लादेश दूसरे नंबर पे खड़ी हुई है। अनफॉर्चुनेट है बहुत उनके लिए, यहाँ पे अगर तस्कीन फॉर्म में आता है तो यकीनन मुझे लगता है कि ऊपर से वो आउट कर सकता है, वो विकेट टेकिंग बॉलर है। बट जो प्रीवियस 2 मैचेस देखे वो बिल्कुल ऑफलाइन हुआ है, रिदम नज़र नहीं आ रहा, बड़ा नज़र आ रहा है कि बॉडी जो एक बॉलर की रिदम में होती है ना, वो रिदम नज़र नहीं आया कहीं भी हमें। Well, we've got a feature on Taskin Ahmed. Let's take a look. What an inspirational story there. Very powerful words when he said, people said that he's finished, he's done. And that comeback, supreme. With that, we'll take a break right here on the Pavilion. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. You're watching the ICC World Cup coverage right here on A Sports and Sports and the ARY Zap app. With me, I've got Shoaib Malik, I've got Misbah, Moin Khan and Wasim Akram. हम लोग बात कर रहे हैं आज के मुकाबले की, न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश की टीम के हवाले से बात कर रहे थे. We've got Sharaful with us. Let's listen in. Likes a ball with a new ball. ये ब्रेक पे जाने से पहले वसीम, we were watching that very inspiring feature. Yeah, of Taskin का, it's just amazing. And the words जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बोले, which he said was that people said that I'm done, I'm finished. And to coming back from that, when people are saying that, it takes a lot. Massive deal. I remember he started his career right in front of my eyes. I used to commentate then in Bangladesh as well. And I mean, like Moin said, कि एलन डोनाल्ड ने आने से बहुत फ़र्क पड़ा इनको. एक तो उनका माइंडसेट उसने ठीक किया है,
Right. आई सपोज इन लड़कों का। और आप देखें बेस्ट इकोनॉमी रेट मिनिमम 50 ओवर्स जो भी 2023 है जो भी है उसमें टशकिन इज़ नंबर 1 इज़ जस्ट अंडर 4.5 per wicket, and then Bumrah, then अपना नसीम शाह, and then Matt Henry आता है. So he's top of the ladder there as far as his average concerned, the lowest. So I mean शुरूफुल का भी इंटरव्यू सुना, कुछ समझ नहीं आया मुझे बट सुना. He tried, poor guy. But the idea जब प्लेयर्स के इंटरव्यू लेते हैं ICC से भी मेरी रिक्वेस्ट है. I know it's an international event, it's going all over the world. But I as a viewer want to understand what player is trying to say. एंड जब आप अगर उनको इंग्लिश नहीं आती, उनकी लैंग्वेज नहीं है, इट्स नॉट देयर फॉल्ट आइदर, देन दे वोंट, वो बेचारे एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि क्या कहना चाह रहे हैं. Simple. Just use a translator. I come to translator. But you have a point there. We want to understand what these guys are saying. We want to connect with them, feel the emotion and all that. एक बड़ी अच्छी चीज़ मोइन बोली तस्किन ने अपने इस फीचर के अंदर, उन्होंने कहा it's not about pace only. Yeah. It's about line, length, swing, control, consistency. Variation. That's a great lesson for young fast bowlers. 100% जैसे वसीम भाई ने भी इसको सेकंड किया इस बात को कि एलन डोनाल्ड के आने से बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि टोटली माइंडसेट चेंज नज़र आया पिछले एक साल में. जिस तरह की बॉलिंग की है, पेस भी जनरेट कर रहे हैं, न्यू बॉल का जो यूज़ है वो भी बहुत अच्छा हुआ है, ऊपर से स्ट्राइक करते हैं, विकेट्स मिलती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइक कि आप अगर नया बॉल का यूज़ अच्छा नहीं करेंगे, विकेट नहीं लेंगे, पार्टनरशिप बिल्ड होगी, तो नेचुरली आपको मुश्किल होगा चेस करते हुए रन्स का. तो यही वजह है कि पिछले एक साल में जो इम्प्रूवमेंट आई है, नेचुरली लाइन लेंथ ऑफ कोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. यहाँ पे इस पिच पे जो अभी हमने देखा है पिच रिपोर्ट्स के अंदर बेटर लग रहा है पिच. तो यहाँ पे अगर टॉस जो भी होता है, जो भी फैसला, अगर इनको बॉलिंग मिलेगी यहाँ पे अगर, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़रूर जो हल्का फुल्का ग्रास नज़र आ रहा है उससे एडवांटेज मिलेगा इनकी फास्ट बॉलिंग को. राइट. इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखें, इनके सारे फास्ट बॉलर्स सारे लंबे हैं, 6 फुट से ज़्यादा इनकी हाइट है. तो एक्स्ट्रा बाउंस जब आप उस हाइट से मारते हैं ला के लेंथ बॉल, तो थोड़ा सा बैट्समैन का, बीइंग बैट्समैन, हम जब भी थोड़ा सा 6 फुट से ऊपर का बॉलर आएगा तो इट्स ऑलवेज डिफ़िकल्ट. वही सेम लेंथ जिसको आप आराम से मैनेज कर सकते हैं, वो मुश्किल हो जाती है आपकी ऐसे बॉलर. तो ये भी, इसके पीछे भी उनका एक थॉट प्रोसेस होगा कि सारे के सारे ऐसे बॉलर लेके आए हैं जो कि 6 फुट से ज़्यादा है जिनकी हाइट. लेकिन जिनके अगेंस्ट उनका मैच है उनको बाउंस बहुत पसंद है. मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, वैलिड पॉइंट. न्यूजीलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ. लेकिन प्रेशर में अभी तक जो पिछले प्रीवियसली 2 मैच देखे उसमें फास्ट बॉलर ने सेकंड में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, यूटिलाइजेशन अच्छी की है. ये एडवांटेज हो सकता है. बिल्कुल. दोबारा ये जरा वसीम के क्लोजर तो कहेगा जी, क्या कह रहे थे वसीम? आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग. नहीं, वसीम भाई को एक दफ़ा बॉल लगी थी इधर, तो वो क्या थोड़े अरसे तक मुंह जो था ना वो एक साइड पे मुंह होता था. ये वही बात है जो पिछले कमरे में थी. मुझे वो जवाब ये दोनों दे रहे और क्रिकेट की बात वसीम ने मुझे ज़्यादा देख. नहीं, मैं आपको कैसे नहीं देखूं यार, आप बीच में बैठे हुए. नहीं, इसका मतलब था तू दस. मैच प्रीव्यू हमारे पास मौजूद है. Wonderful feature there. With that, we're going to take a break on the Pavilion, but when we come back, we're closer to the action. Welcome back to the Pavilion. You are watching A Sports, 10 Sports and the Airwise app, and we're talking about the game in Chennai, जो कि है बांग्लादेश बामुकाबला न्यूजीलैंड. हमने बांग्लादेश के बारे में बहुत सी बातें की, एंड अभी ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें शोएब मलिक ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि न्यूजीलैंड लाइक्स द बाउंस. मिसबा कह रहे थे कि बांग्लादेशी फास्ट बॉलर्स बाउंस करते हैं, हाइट से बॉल करते हैं. न्यूजीलैंड इज लाइक अंडर आर्म कर दें सारी. अंडर आर्म कर दें सारी. वो है ना उनके ऑफ स्पिनर मेहदी हसन और मिराज, वो कराते हैं ना यहाँ से. We've got a preview right here with Daryl Mitchell. Let's take a look. It seemed interesting. A lot of Australian influence on Daryl Mitchell. Yes, his teenage years in Australia, his high school in Australia. फिर माइक हसी का नाम लिया उन्होंने, so it's Justin Langer का नाम लिया. बिल्कुल, that they had a lot of influence on his career. Yeah, if you live in Australia, obviously you're going to follow Australian greats, and he's a very useful player, very talented player.
And like the captain said, he is one of our main weapons in this World Cup. He has been very consistent from last year or so in this very formidable New Zealand side. Yeah. एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट थी, अगर इस 1 मिनट है, वेरी इंस्पायरिंग, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ थी जो मुझे लगी वो ये था कि उनका जो चाइल्डहुड था वो उनको राइट गाइडेंस मिली उस टाइम पे। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो बच्चा है व्हेन ही इज़ ग्रोइंग, तो उसको लाइफ में हर्डल्स आएंगी, अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे, तो उसको ऐसा प्रिपेयर्ड करना चाहिए अपने बच्चे को, जहाँ पे भी जिन पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, कि उसे हर हर्डल के लिए रेडी करें, उसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। बिल्कुल सही, ताकि ये है कि वो किसी के साथ किसी भी सिचुएशन जो है वो उसे मिले लाइफ में तो वो रेडी हो। बिल्कुल सही बात की। मैं आप ही से शोएब करता हूँ, वेयर डज विलियमसन व्हेन ही कम्स इन, वेयर डज ही बैट? Well, the combination in batting which played against पाकिस्तान जो वार्म अप मैच था, उसमें वो इस फॉर्मेशन से खेले थे जिसमें कॉनवे और रविंद्रा ने ओपन की थी, विलियमसन 3 पे खेले थे, 4 पे डेरल मिचेल खेले थे, 5 पे टॉम लिथम खेले थे, 6 पे ग्लेन फिलिप्स खेले थे, 7 पे चैपमैन। तो हो सकता है कि ये आज इस फॉर्मेशन के साथ खेलें। विल यंग ने ज़रूर रन्स बनाया लास्ट इनिंग्स में, लेकिन मुझे लग रहा है कि किसी ना किसी को जो है वो करना पड़ेगा। तो हो सकता है सेम फॉर्मेशन के साथ वो खेलें जो पाकिस्तान के अगेंस्ट वार्म अप मैच में खेले। Very true. We've got Williamson. Sorry, we were talking about Williamson. We've got Trent Bolt with us. Let's listen in. Right on. There you have it. Welcome back to international cricket. Moin. Trent Bolt. बेस्ट बॉलर आई थिंक नए बॉल से जितने एक्यूरेट, ये एक लेफ्ट आर्मर देखा है मैंने, स्ट्राइक विकेट टेकिंग बॉलर, यू नो, क्रिएट प्रेशर ऑन द ओपोनेंट्स ऑलवेज। आई थिंक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है इस वक्त, स्पेशली टीम सऊदी नहीं खेल रही, यू नो, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ली हुई है इन्होंने। Right. तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह की ये बॉलिंग करते हैं, जिस लेंथ पे, जिस लाइन पे बॉल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है इनिशियली कि आप बैट्समैन को आउट करें, आपको विकेट मिले, क्योंकि विकेट टू विकेट या क्लोज टू द बॉडी करते हैं ये बॉल। All right, with that, we're going to take another break right here on the Pavilion. But when we come back, we get closer to the toss. Don't go away. Keep watching. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and the Airwise app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023, and we are taking you to Chennai today, जहां पे न्यूजीलैंड का मुकाबला है बांग्लादेश से। अभी हम टीमों के हवाले से बात कर रहे थे। मिसबाह, let me bring this question to you. पिच रिपोर्ट आपने देखी, बहुत सारे लोगों के जहन में एक ही सवाल है कि क्या इस पिच पे बॉल टर्न करेगा, स्पिन होगा या नहीं? स्पिन पिच पे नहीं होता, उंगलियों में होता है, उंगली जिसको आता है वो करेगा। इसकी हिस्ट्री बता दें जरा हमारे लोगों को कि ये किस तरह हो रही है बात। नहीं, हमारे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे कोचेज हैं जो इस तरह की बात करते हैं। नहीं, कोचेस नहीं है, क्यूरेटर हैं। जब उनसे पिच के बारे में पूछे ना, क्योंकि यही सवाल होता है ना जब भी कोई फॉरेन टीम आती है, यार स्पिन पिच चाहिए, तो पिच पे खड़े होकर उनसे पूछो ना कि स्पिन होगा, तो उनका यही जवाब होता है, ये स्पिन पिच पे नहीं होता, वो बॉलर के हाथों में होता है। अच्छा, बहुत अच्छा। वैसे मोइन भाई, कोच आप और मिसबा भाई भी हैं। हमारा लेवल छोटा है ना, बड़े कोचेस की बात कर रहा हूँ मैं। All right, boys. Okay, that is interesting. Now, let's go back to the New Zealand squad. New Zealand, आपने बैटिंग ऑर्डर के हवाले से बात की कि विलियमसन अगर आते हैं तो क्या वो पुराने वाली अपनी फॉर्मेशन और अपने बैटिंग ऑर्डर के साथ खेलेंगे? What do you think कि अगर फर्ज करें पहले बांग्लादेश बैटिंग करके एक अच्छा टारगेट जो है वो लगा देती है, will that put New Zealand under any kind of pressure because their batting looks invincible right now? न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नहीं, आई गेस किसी भी टीम के अगेंस्ट अगर वो अच्छा टोटल सेट करेंगे तो वो अंडर प्रेशर ज़रूर आएंगे। हैविंग सेड दैट, न्यूजीलैंड बैटर्स दे आर ऑल इन गुड फॉर्म, और वो ऐसा नहीं है गेम फिनिश भी करना आता है। अगर हम रविंद्र की बात करें तो जो उन्होंने इनिंग्स खेली पहले मैच में, इट शोज़ के यंगस्टर से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता मोस्टली, लेकिन उन्होंने जिस तरह मैच्योरिटी दिखाई उसमें, और मुझे ये लगता है कि कैप्टन के आने से ये है कि उनको थोड़ा सा और हौसला मिलेगा कि यार नहीं, हमारे पास एक ऐसा बैटर आया है, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है, कन्वेंशनल क्रिकेट खेलता है, तो हम दूसरे एंड से मोस्टली वो स्ट्रोक मेकर्स हैं।
लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो पैनिक करेंगे, बड़ा कंपोस्ट खेलते हैं, चाहे पहले उनकी बैटिंग आए या दूसरी आए। और अच्छी बात यह है न्यूजीलैंड में 2 मैचेस खेले हैं, एक में उन्होंने पहले बैटिंग की है, एक में उन्होंने बाद में किया। पहले मैच में उन्होंने चेस किया, दूसरे में उन्होंने पहले बैटिंग की। सो दे आर रेडी कि कुछ भी पहले आ जाए। वेल द न्यूजीलैंडर्स डेफिनेटली लुक वेरी वेरी रेडी। हम आपको चेन्नई लेके जा रहे हैं बराह रास्त, जहां पे दोनों कप्तान जा रहे हैं ग्राउंड के बीच में। इट्स टाइम टू फ्लिप। राइट जनाब, चेन्नई से खबर है न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। शाकिब अल हसन आप देख रहे थे, बांग्लादेश के कप्तान। बड़ी यूनिक इनके पास एक पोजीशन है और वो है 5000 रन और 300 विकेट लेने वाले ये तीसरे खिलाड़ी हैं सनत जयसूरी और शाहिद अफरीदी के बाद। लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद शाकिब। बड़ी अच्छी ऑलराउंडर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट में, नो क्वेश्चन अबाउट इट। वसीम, बड़ी बात उन्होंने की कि हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, स्टार्ट सही अगर हो जाए हमारे तो फिर हम आगे जाके सही कर ही लेंगे। Yeah, the starting off well, even with batting, he said, with bowling as well, but not finishing it. Yeah. वो कंसिस्टेंसी इनको बांग्लादेश में मिलती है, बट बाहर जाते हैं ना ये अच्छी टीमों के खिलाफ, वहाँ पे ये स्ट्रगल करते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं है बैटिंग में। दे ऑल रिलाई टू मच आई थिंक ऑन द स्किपर हिमसेल्फ, हु इज एन ऑलराउंडर, नंबर 1 ऑलराउंडर, बट बैटर्स हैव टू चिप इन। आई मीन दे आर बैटिंग फर्स्ट, एटलीस्ट गेट टू 280 300 अगेंस्ट सच अ गुड साइड टू पुट प्रेशर ऑन देम। फर्स्ट 10 ओवर्स में सबसे बड़ा चैलेंज ट्रेंट बोल्ट होगा इनके। पिछले मैच में भी टॉप लीग के अगेंस्ट स्ट्रगल किया उन्होंने, तीनों लेफ्ट हैंडर्स जो टॉप ऑर्डर के उनको वो आउट कर गए। सिमिलर टाइप ऑफ बॉलर, हाइट डिफरेंस है लेकिन वो सिमिलर टाइप ऑफ बॉलर है। ये भी स्विंग होगा अर्ली ऑन बॉल और लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। तो आई थिंक फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले 10 ओवर्स में अगर बैट फर्स्ट है उनको कैसे नेगोशिएट करना है नए बॉल से, एंड देन सी टू पुट रन्स के हाँ जी हमने 270-280 रन्स करने हैं या 300 के करीब रन्स करने। तमीम को कितना मिस कर रही है बांग्लादेश की साइड शोएब? ये तो शाकिब बताएगा। है ना, सही बात है। बट you would assume that ये playing 11 आ रही है, उसको जरा देख लेते हैं। And we'll talk about Tamim because he was a very important component. ये बांग्लादेश की टीम है, लिटन दास, तंजीर, शांतो, शाकिब, हसन मिराज, मुशफिकुर, रहीम, हॉरिडॉय, मोहम्मदुल्लाह जो आज आए हैं, उसकी जगह मेहंदी हसन की जगह पे, फिर तस्किन शोरिफुल एंड मुस्तफिजुर। एक चेंज है आज उनकी टीम में और मोहम्मदुल्लाह आए हैं उसकी मेहंदी मिराज की जगह पे, क्योंकि ये भी ऑफ स्पिन कर लेते हैं। न्यूजीलैंड प्लीज जी एक ही चेंज है इनकी, विलियमसन आया है मिलजॉन की जगह, कॉनवे, रविंद्रा, मिचेल, लेथम, फिलिप्स, चैपमैन, सैडनर, हेनरी, फर्गूसन, बोल्ट। और टेम्पटेशन होगी इनकी सऊदी को खिलाने की, बट ही इज़ नॉट देयर बिकॉज ही टुक 6 विकेट्स अगेंस्ट बांग्लादेश इन द लास्ट सीरीज। तो they are going with the same team. Shoaib, good call. Will Young is out, Williamson is in, and with that we're going to take a break. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं Sports 10 Sports in the Airways app. With me I've got Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan and Wasim Akram. और वक्त हुआ है बगैर किसी ताखीर के, it is time for the expert predictions brought to you by Palmolive Natural. All right, let's start off with you, Misbah. Your prediction today. वही साउथ अफ्रीका। ठीक है, मैंने आपको पहले सेगमेंट में बताया। आपने साउथ अफ्रीका बोला था मुझे। चले साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका सही से बता देना भाई। न्यूजीलैंड। स्किप। I'll go for New Zealand favorites. न्यूजीलैंड। मोइन? मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड। NZ. All right, and those are your expert predictions brought to you by Palmolive Natural. All right, Janab, time for player to watch out for, brought to you by Ufone. Shoaib Malik, player to watch out. Kane Williamson. Moin? Devon Conway. Skip. I'll go for Santner. I had Williamson, but then he picked it up, so I'll go for मैं चेंज कर लेता हूँ इसी पे। No, it's okay. I'm fine. सानू के लिए थे कप मिलने ना। And Misbah? Ravindra today. All right. And those are your players to watch out for. बांग्लादेश के बल्लेबाजों के लिए आज क्या अप्रोच सही रहेगी, क्या उनको करना चाहिए एक बड़ा टोटल पुश करने के लिए? सबसे पहले तो जो शाकिब ने भी बात की है कि अच्छा स्टार्ट चाहिए उनको। अर्ली विकेट्स जा रही हैं उनकी और उसके लिए ट्रेंट बोल्ट को अर्ली ऑन नेगोशिएट करना, नया बॉल अगर वो निकालेंगे तो उसके बाद उनके पास चांसेस हैं रन्स करने के। सो पार्टनरशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी अगर देखें इनकी इनएक्सपीरियंस साइड है,
तमीम नहीं है तो उस वजह से टॉप ऑर्डर में सिर्फ 8 मैच खेले हैं तंजीम। एक दफ़ा अच्छा स्टार्ट हो गया तो फिर मेरे ख़्याल में बांग्लादेश के पास चांसेस हैं कि वो ऐसा टोटल करें जो थोड़ा चैलेंजिंग हो न्यूजीलैंड के लिए। Yep. And how would the New Zealanders going about their business when they're bowling first? Well, definitely they would try to restrict them as less as they can. पिच जिस तरह की लग रही है, जिस तरह मिसबा ने कहा कि गेंद स्विंग होगा, ट्रेंट बोल्ट को संभालना मुश्किल हो सकता है या बांग्लादेश के लिए, तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम कोशिश करेगी स्ट्राइक करे, विकेट्स ले जो अभी तक फॉर्म में नहीं है बांग्लादेश के बैट्समैन और इसी तरह वो बहुत मिनिमम रन्स पे उनको आउट कर सकते हैं अगर स्टार्ट अच्छा मिल गया, विकेट्स उनको मिल गई तो। शोएब, यूँ लग रहा है कि जो बड़ी टीमें हैं या जो टीमें अच्छी लग रही हैं इस वक्त या पोर्टेंट टीमें हैं, वो नेट रन रेट को अभी से ही जो है नज़र में रख के बैठी हुई हैं। दे ट्राइंग टू मेक के डिफीट का जो मार्जिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ ताकि उनका नेट रन रेट बेहतर रहे पॉइंट्स टेबल पे। क्योंकि 2019 का जो वर्ल्ड कप था इंग्लैंड वाला, उसमें देखें तो पाकिस्तान टीम नेट रन रेट पे बाहर हुई थी और भी ऐसी टीम्स थी उसमें जो कम्पीट कर रहे थे 3rd या 4th पोजीशन के लिए। तो और बहुत सारी टीम्स ये भी चाहती हैं कि उनके मैचेस जो है ना उनसे आए जिनसे वो राउंड का मैच जीते हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें भी वो मद्देनज़र रखते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये मीटिंग्स में ये बात होती होगी अर्ली टूर्नामेंट में, लेकिन अच्छी टीम्स वैसे ही जब वो क्लोज जाते हैं तो वो जल्दी टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। Yeah, instead of lingering on, once they get the grasp on the game itself कि ओके भाई अब 240 करना है तो हमारा 150 पे कोई आउट नहीं है, सो लेट्स गो 5 and over 6 and over without taking a risk, और कोशिश करें कि पहले खत्म, बैक ऑफ द माइंड उनके होता है नेट रन रेट और होना भी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। बैक ऑफ द माइंड से ख्याल आया कि वो कल रात को बड़ी ज़बरदस्त आपने एक परफॉर्मेंस दी थी मुझे वसीम। क्या वो इधर दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पे, मुलाहिजा कीजिए। दिस इज वसीम अकरम एट हिज बेस्ट। वो एक शफकत चीमा की बड़ी फेमस लाइन थी वसीम, जो आप ब्रेक में हमें बार बार सुना रहे थे, वो एक दफा करके दिखा दीजिए। क्योंकि मोइन भाई भी रेडी हैं आवाज निकालने के लिए। जरा म्यूजिक बंद कीजिएगा प्लीज, म्यूजिक बंद कीजिएगा प्लीज, म्यूजिक बंद कीजिएगा। It's actually a dialogue, so there is nothing vulgar about it. No, but please do it. We love it. This is best TV at its finest and Pavilion at its finest. That's not fair. Ready? Dialogue बोले। Ready? Action. यार ये किसकी शरारत है? मैं आ रहा हूँ सीधा प्रोडक्शन हाउस पे आ रहा हूँ, साकिब साहब और आपकी टीम बचो मेरे से, और डंडा ले आओ मेरा। नहीं, वो उनको पता चल गया भाई आप तो नाग हैं। ओए मैं नाग हाँ। दोबारा? नहीं, I'm not doing it again. Come on, यार. You got to do this for us. Just get on with it. वाह, Well, आप देखते रहिए कि आज कौन सी टीम किसको डसती है चेन्नई में। We'll see you at the end of the game.